very warm good morning, children. Welcome back to the EVS class. As you all know, we are having online classes. Why? क्यों online classes चल रही हैं? Why are you not coming to school? Why are you not able to meet your friends? You all know the reason. The schools are closed due to this coronavirus pandemic, and staying home, staying inside is the best precaution at the moment. So that is why we all are at home. We are teaching you from home. You are attending classes from home, and I hope that you all are enjoying your classes. So to start the class, we are doing lesson number 3 of EVS. Your book is Think Green Environmental Studies, Book 1. Okay? We are doing lesson number 3, which is My Family. Lesson number 3 is My Family. We have already completed the lesson. The reading and the explanation part is already over. In this lesson, what all have we learned? इस लेसन में हमने क्या क्या सीखा? इस लेसन में हमने सीखा What is a family? फैमिली क्या होती है? What is the importance of family? हमारी लाइफ में फैमिली की क्या इम्पोर्टेंस है? एंड थर्ड इज अबाउट टाइप्स ऑफ फैमिलीज. कितने तरह की फैमिलीज होती हैं? So as I told you, there are 3 types of families: small family or nuclear family, then big family and joint family. Family is important to us because we help each other and we share the work at home. Then we love everyone in the family. Then we support our family members, and a family keeps us safe and healthy. So that is why we must respect and love our family. हमें अपनी फैमिली को प्यार करना चाहिए. Of course we all do it. सभी लोग अपने फैमिली मेंबर से हर कोई प्यार करता है. Okay? Then we have done the keywords. Keywords are parents, grandparents, family, a nuclear family, and then we did things to remember also. And we have already started the exercises. In my previous video, we did the first question of the exercise, that is, take the correct option. Now today, we will start from B. Okay? We are doing My Family. Chapter 3, My Family. Okay? Now in this we have already done question number A, that is, take the correct option. Now today we will start from B. Take the correct sentence and cross the incorrect ones. We'll start from B. Okay? Put a tick on correct. I'm not writing the whole question. And cross the incorrect ones. मतलब जो सेंटेंसेस करेक्ट हैं उन पे हमें क्या लगाना है? टिक लगाना है. और जो सेंटेंसेस रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, उनमें क्या लगाना है? क्रॉस. ओके? सो फर्स्ट इज अ जॉइंट फैमिली हैज फ्यू मेंबर्स. मतलब जॉइंट फैमिली में थोड़े से ही मेंबर्स होते हैं. इज इट ट्रू और फॉल्स? जॉइंट फैमिली में तो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं.
as we all discussed in the previous video, there are so many members in a joint family. Parents, brother, sisters, grandparents, okay, cousins, uncle, aunt, everyone is there in a joint family. So first sentence is incorrect. A joint family has few members is incorrect. So first would be cross. Second is, my name is Chhabi Patra. My brother's name is Pranav Patra. Our family name is Patra. So tell me, correct होगा या wrong होगा? This is correct because जैसा मैंने बताया था, in a family all the members have got different names. Family में members के नाम सबके अलग अलग होते हैं, but the surname or you can say the family name is the same. So this is the correct answer. Okay. The third is, uncles, sons or daughters are our cousins. ये भी करेक्ट है. जैसे मैंने बताया था कि जो भी हमारे अंकल के बच्चे होते हैं, लड़का है, लड़की है, जो भी है, that is they are our cousins. So this sentence is also correct. And fourth is, a large family is also called a nuclear family. Do you think this is right or it could be wrong? This is definitely wrong because nuclear family means small family where only father, mother and children, maybe one or two children live. That is a nuclear family. Whereas a large family consists of, large family में कौन कौन होता है? Parents होते हैं, your brothers, sisters and then grandparents are also there. So this is wrong. This is wrong. Okay. So now next exercise is match the following. Question number C is match the following. Okay, match the following. Now in this, first is grandparents, parents, children, uncle, aunts and cousins live together. Family members are given. You have to match them with the name. That means big family को क्या कहते हैं? What is your father and mother known as? Fathers और mothers के parents को क्या बोलते हैं? तो आपको उसके साथ मैच करना है. Okay? First, 2, 3 and 4. And here it is. Boxes are there. You have to write the correct number in the box. Okay? First is grandfather. Then parents. Then joint family and nuclear family. Okay, now we will do the matching part. Grandparents, parents, children, uncle, aunt and cousins live together. So when all these people live together, what do you call such a family? जिस family में ये सारे लोग एक साथ रहते हैं,
आप उस फैमिली को क्या बोलते हो? दैट फैमिली इज नोन एज अ जॉइंट फैमिली, where grandparents, parents, children, uncle, aunt, cousins, everyone live together. That family is a joint family. So we will write here. We will write 1 in front of joint family. Next is parents and children live together. Family where only parents and children are there. What is the family known as? That family is known as nuclear family. So this is 2. Okay. Then third is my mother and father. If mother and father are known as, मम्मी और पापा को क्या बोलते हैं? They are known as parents. Third and fourth is my father's father. फादर के फादर को हम क्या बोलते हैं? फादर्स फादर इज नोन एज ग्रैंडफादर. दिस इज ग्रैंडफादर. ओके. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज डी. कंप्लीट योर फैमिली वेब चार्ट. ओके. राइट योर फैमिली मेंबर्स नेम in the given boxes. This whole chart, as you can see in your book, this is given here. You have to complete this chart. Okay, you have to complete this chart by writing the names. जो भी names, जिसके भी name पूछे गए हैं, वो नाम लिख करके आपको इस चार्ट को complete करना है. Okay, जो भी नाम इसमें पूछे गए हैं, like your great grandfather. पहले आपके ग्रेट ग्रैंडफादर होंगे. दैट मीन्स योर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स. ओके. आपके जो पेरेंट्स के पेरेंट्स हैं वो तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हुए. योर ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स योर पेरेंट्स पेरेंट्स. तो आपके मतलब मम्मी पापा के जो नाना नानी या दादा दादी हैं, दे आर योर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स. सो योर ग्रेट ग्रैंडफादर मीन्स आपके दादाजी. ओके. पापा के दादाजी, सॉरी. ग्रेट ग्रैंडफादर मीन्स आपके पापा के दादाजी. ओके. पापा के दादाजी इज योर ग्रैंडफादर. पापा के पापा ग्रैंडफादर हुए. पापा के जो पापा के पापा हैं वो ग्रेट ग्रैंडफादर. ग्रेट ग्रैंडफादर हुए. उसके बाद आपके ग्रैंड पेरेंट्स हुए. ओके. एंड देन योर ग्रैंडफादर, योर ग्रैंडमदर. यहाँ पे आपको अपनी ग्रैंडफादर का नाम, इधर आपको ग्रैंडमदर का नाम, मतलब दादाजी और दादी जी. ओके. बिकॉज फादर के साइड के जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनसे पूरा फैमिली नेम चलता है. तो ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, ये आपको यहाँ पे नाम लिखना है. देन यू हैव टू राइट योर फादर्स नेम. योर अंकल, मतलब अगर आपके पापा के कोई बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं, कोई भी हैं, उनका नाम लिखना है. ओके. देन योर आंट, माने फादर की सिस्टर. फादर की सिस्टर क्या हुई? आपकी बुआ होती है फादर की सिस्टर ना. तो आपको अपनी आंट का नाम लिखना है. दैट मीन्स योर फादर सिस्टर, बुआ का नाम. देन योर फादर, हियर यू हैव टू राइट योर मदर्स नेम. यहाँ पे जिन अंकल का नाम लिखा था उनकी वाइफ का नाम, मतलब आपकी आंट. अगर चाचा का नाम यहाँ लिखा है तो यहाँ पे किसका नाम होगा? चाची का नाम. अगर बड़े पापा का नाम या ताऊजी का नाम लिखा है तो यहाँ पे किसका नाम होगा? ताई जी का नाम. अगर पापा के कोई भाई नहीं है देन यू विल लीव दिस कॉलम्स ब्लैंक. अगर पापा के कोई बड़ा भाई या छोटा भाई नहीं है तो आप ये कॉलम खाली छोड़ दोगे. ओके. और यहाँ पे फादर की सिस्टर का नाम लिखा था तो यहाँ पे आपको उनके हस्बैंड का नाम लिखना होगा, मतलब जो आपके फूफा जी हुए. बुआ जी फूफा जी बोलते हो ना. तो यहाँ पे फादर की सिस्टर का नाम लिखा, यहाँ पे उनके हस्बैंड का नाम लिखोगे. यहाँ पे यू विल राइट योर नेम. जहाँ पे यू लिखा है उसके नीचे आप अपना नाम लिखोगे. इधर आपके ब्रदर या सिस्टर या जो भी हैं, अगर दोनों हैं तो दोनों के नाम लिखोगे. यहाँ पे आपके कजिन का नाम लिखोगे, मतलब आपके अंकल के जो बच्चे हैं
और यहाँ पे भी आप कजन का नाम लिखोगे, मतलब आपकी जो बुआ हैं उनके जो बच्चे हैं। ओके, सो दिस इज हाउ द फैमिली ट्री इज कंप्लीटेड। ये दिस इज फैमिली वेब चार्ट। इसको तो मैं बोर्ड पे नहीं करा सकती हूँ बिकॉज सबके घर में नाम अलग अलग होंगे। सो दिस यू हैव टू डू ऑन योर ओन इन द बुक इटसेल्फ। इसको बुक में आपको अपने आप करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज नाउ एज आई टोल्ड यू, जैसे मैंने बताया था बेटा आप लोग को पहले भी कि हिंदी में अलग अलग रिलेशंस के अलग अलग नाम होते हैं, बट इन इंग्लिश देयर आर नो सेपरेट नेम्स। नाना नानी, दादा दादी, एवरीवन इज ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर। देन मामा मामी, मौसी मौसा, बुआ जी, फूफा जी, चाचा चाची, बड़े पापा, बड़े मम्मी, सारे क्या है? अंकल एंड आंट, और सबके बच्चे कजिन हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन आंसर्स। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली? नाउ अगेन this question also we cannot do in the, I cannot do it on the board because all of you have got different number of family members. घर में सबके family members अलग अलग हैं, ठीक है। So in question number 1 you have to write the members are there in your family. अभी members in your family का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी अपनी बड़ी सी फैमिली का सबका नंबर लिखो। मेंबर्स इन योर फैमिली मतलब आप जितने मेंबर्स एक साथ रहते हो। अगर मम्मी पापा भाई बहन सिर्फ रहते हो तो उनका नंबर लिखोगे। इफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर लिव विथ यू तो आप उनका नंबर लिखोगे। ओके, मतलब जितने लोग आप हमेशा साथ रहते हो। भी कुछ यहाँ पे है, कोई गांव पे है, कोई किसी और सिटी में है, तो सबका नाम आपको नहीं लिखना है, सबका नंबर नहीं लिखना है। ओके, जितने मेंबर्स आप लोग साथ रहते हो बस उतने ही। The next question is, what type of family do you live in? मतलब आप कैसी फैमिली में रहते हो। Okay? Now you have to write whether you live in a joint family, in a nuclear family or in a big family. Okay? This also I cannot write on the board because everyone lives in a different kind of family. कोई joint family में रह सकता है, कोई nuclear family में रह सकता है, कोई बिग फैमिली में होगा। ओके, सो ये भी आपको अपने आप करना है। देन थर्ड इज, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव्स? क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव्स? ये भी मैंने बताया था कि द पर्सन हु इज रिलेटेड टू अस। ओके, जो डिस्टेंट फैमिली मेंबर्स भी होते हैं कई बार, दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू यू, बहुत पास का रिलेशन नहीं है। जैसे इफ यू से ही इज माई रिलेटिव, अभी रिलेटिव में कोई बहुत पास का है कि सपोज पापा के साइड के पापा के भाई हैं, सिस्टर है, मम्मी के भाई हैं या सिस्टर है, तो वो बहुत क्लोज रिलेटिव हुए। कई बार हम डिस्टेंट मतलब बहुत दूर का रिलेशन है, किसी तरह से बस पापा के कुछ रिलेशन में कोई लगते हैं, सो दे आर नोन एज रिलेटिव। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट डू यू मीन बाय relatives? What do you mean by relatives? Okay, so I am writing only this answer. What do you mean by relatives? Distant family members are known as relatives. E. Question is, what do you mean by relatives? Okay, the question is, what do you mean by relatives? And the answer is, distant, distant,
डिस्टेंट का मतलब होता है जो बहुत दूर के रिलेशन में होते हैं, दूर वाले। डिस्टेंस जैसे जो बोलते हैं ना बहुत डिस्टेंस से दूर, तो डिस्टेंट मीन्स दूर वाले। सो डिस्टेंट फैमिली members are called relatives. Distant family members are called relatives. Okay. Then next is these are HOTS question answers. That means higher order thinking skill. Okay. First is, this is HOTS. HOTS means higher order thinking skill. That means in HOTS there are question answers जिसका कि आपको डायरेक्ट आंसर लेसन में नहीं मिलता है। लेसन में जो पढ़ाया हमने उस पे आपको जो समझ में आया उसके बेसिस पे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। दे आर नोन एज HOTS. ओके. Now the question is, write 2 duties your father performs for the family. मतलब 2 ड्यूटी आपको लिखनी है जो कि आपके पापा फैमिली के लिए करते हैं। अभी घर में सारा काम तो कोई एक नहीं करता है। There are certain work which your mother does, certain work which your father does. मतलब कुछ काम ऐसे हैं घर में जो कि आपकी मम्मी करती हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो कि आपके पापा करते हैं। ठीक है ना। सारे काम मम्मी या सारे काम पापा नहीं कर सकते। सो नॉर्मली क्या होता है, अधिकतर घरों में होगा जो घर के बाहर का काम है वो कौन करता है, पापा लोग करते हैं, और जो घर का काम है वो मम्मी करती है। हियर यू हैव टू राइट 2 ड्यूटीज दैट योर फादर परफॉर्म्स फॉर द फैमिली। मतलब 2 ऐसे काम जो आपके पापा करते हैं घर के लिए। ओके. सो फर्स्ट इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर में 2 ड्यूटीज में एक तो हम लिख सकते हैं फादर अर्न्स मनी फॉर द फैमिली। पापा जो है फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को, फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे कमाते हैं। सो वी कैन राइट father earns money for the father। एक तो घर की रिक्वायरमेंट्स को, घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए नौकरी करते हैं, पैसे कमाते हैं। ठीक है ना। सो वी कैन राइट फादर अर्न्स मनी फॉर द फैमिली। और क्या करते हैं पापा, नॉर्मली बाहर का जो भी जितना काम होता है वो पापा लोग करते हैं ना। बाहर जाकर के कुछ भी काम होता है तो पापा लोग करते हैं अक्सर। तो वी कैन राइट फादर अर्न्स मनी फॉर द फैमिली। और फादर क्या करते हैं आप बताओ। आपके घर में, किसी के घर में पापा बाहर जाकर के घर के बाहर का काम करते होंगे, या घर के जितने मेंबर्स हैं, घर में जितने लोग हैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पापा लोग लेते हैं ना। घर में वाइफ की, बच्चे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पापा लेते हैं, सबको लुक आफ्टर करते हैं। सो फादर लुक्स आफ्टर everyone
इन द फैमिली। पापा सबकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, है ना, और घर के लिए पैसे कमाते हैं। नाउ राइट 2 ड्यूटीज योर मदर परफॉर्म फॉर द फैमिली। 2 वर्क जो कि आपकी मम्मी करती हैं घर के लिए। मम्मी क्या करती है? मम्मी घर का सारा काम करती है ना। आंसर मम्मी सबके लिए खाना बनाती है। सो मदर cooks food for everyone in the family। मम्मी सबके लिए खाना बनाती है। और मम्मी क्या करती है? मम्मी घर की देखभाल करती हैं, मम्मी घर साफ सुथरा रखती हैं, है ना। तो यू कैन राइट मम्मी मदर keeps the house clean, okay, and then write 2 duties you perform for your family। आप अपनी फैमिली के लिए कौन कौन से 2 काम करते हो, जो काम आप करते हो। ओके, सो आप क्या क्या काम करते हो? यू कैन हेल्प योर मदर इन कंप्लीटिंग द हाउस होल्ड वर्क। आप मम्मी जो घर में काम करती हैं उसमें मम्मी की हेल्प कर सकते हो, इजंट इट। मम्मी की हेल्प आप कैसे कर सकते हो? घर को गंदा मत करो। मम्मी ने जो भी सामान जहां रखने को कहा है वहां रखो। कीप योर थिंग्स एट द प्रॉपर प्लेस। खाने के बाद आप जो खाने के बाद बर्तन निकलते हैं, यूटेंसिल्स हैं, उनको जाके आप प्रॉपर जगह पे रखो। When you come back from the school, you keep your things at the proper place. Okay? तो अगर ऐसे आप करोगे तो मम्मी का काम हल्का हो जाएगा। If you come back and throw everything here and there, कपड़े कहीं फेंक दिए, यूनिफॉर्म कहीं फेंक दिया, बैग कहीं पे फेंक दिया, जूते मुझे उतार के उधर फेंक दिए, तो मम्मी को सारा सामान कलेक्ट करना पड़ेगा, सारा घर साफ करना पड़ेगा। तो इफ यू कीप योर थिंग्स एट द प्रॉपर प्लेस, मम्मी का काम हल्का हो जाएगा ना। तो आप कैसे हेल्प कर सकते हो? बाय कीपिंग योर थिंग्स एट द प्रॉपर प्लेस। सिंस यू ऑल आर वेरी स्मॉल, आप और ज्यादा तो कुछ काम नहीं कर सकते। अब मम्मी आपको ये तो नहीं बोलेगी ना कि घर में झाड़ू कर दो, कि घर में पोछा कर दो, कि डस्टिंग कर दो, बट यू कैन हेल्प योर मदर बाय कीपिंग योर थिंग्स एट द प्रॉपर प्लेस। और क्या कर सकते हो? आप जो घर में प्लांट्स अगर हैं तो वाटर द प्लांट्स में पानी दे दो, बॉटल्स को फिलअप कर दो, ठीक है ना। तो ऐसे छोटे छोटे काम करके आप अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हो। नाउ अंडरस्टैंड द फैमिली ट्री। फैमिली ट्री किसे बोलते हैं? फैमिली ट्री लाइक जैसे एक ट्री होता है, वाई इट इज कॉल्ड फैमिली ट्री। फैमिली ट्री क्यों बोलते हैं इसको? जो फैमिली ट्री बोलते हैं, वाई, इसके पीछे क्या रीजन है? यू हैव सीन अ ट्री जैसे होता है, दिस इज, फिर ट्री की ऐसे ऐसे करके बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है ना। ट्री की ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं। एक उसका ट्रंक होता है ट्री का। फैमिली ट्री बोलते हैं बिकॉज फैमिली कभी कहीं से स्टार्ट हुई होगी, उसके बाद उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, ऐसे करते करते फैमिली बढ़ती जाती है। योर ग्रैंड पेरेंट्स, योर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, उनके भी तो कोई ग्रैंड पेरेंट्स होंगे ना। तो फैमिली ट्री इसीलिए बोलते हैं बिकॉज फैमिली कीप्स ऑन स्प्रेडिंग। फैमिली जो है वो स्प्रेड होती जाती है, ठीक है। कोई इधर गया, कोई उधर गया, कोई उधर गया, तो फैमिली कीप्स ऑन स्प्रेडिंग। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फैमिली ट्री। ओके, सो मिस्टर मोहन एंड जोइता आर अ कपल
they have a son named Rohan. Couple means wife, husband. Okay. उनका मिस्टर मोहन एंड जोयता वाइफ हस्बैंड है. उनका एक बेटा है रोहन. ठीक है. रोहन इज मैरिड टू दीपिका. रोहन की शादी किससे हुई है? दीपिका से. सो दीपिका इज देयर डॉटर इन लॉ. डॉटर इन लॉ मतलब बहू. दे हैव 2 चिल्ड्रन. उनके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं. देयर नेम्स आर आजाद एंड आकृति. उन दोनों बच्चों के नाम क्या है? आजाद और आकृति. आजाद उनका बेटा है और आकृति इज देयर डॉटर. ओके. सो अभी ये और बड़े होंगे, फिर इनकी शादी होगी, फिर इनके बच्चे होंगे, एंड इन दिस मैनर द फैमिली विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड फैमिली ट्री. ओके चिल्ड्रन. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस लेसन. हमारा लेसन कंप्लीट हो गया. So I will stop here now. I'll stop today. We have completed the lesson. In next video, I will start lesson number 4. Okay? Thank you, children.